students, for your comfort, for your help, and like in your aspiration to score like 40 out of 40 marks in mathematics, the team ClassPath here is going to give you the solution and the questions, like questions along with solution of the most anticipated questions for your CBSE board examination. आप ये मान के चलें कि यदि देखिए पेपर यदि बहुत ही सरल आता है, if it's going to be quite a simple one, then most of you who have worked hard in previous few months at least, they will be able to solve it. But अगर पेपर थोड़ा सा ट्रिकी होता है और कुछ selected tough questions डाले जाते हैं, so the questions which I'm going to list here along with the solutions, they won't go beyond them. तो ये जो हम आपको क्वेश्चंस यहाँ करवाने जा रहे हैं, एक बार आप ये क्वेश्चंस यदि स्वयं से कर लेंगे, सॉल्यूशंस आपके सामने होंगे, बट स्टिल यू नीड टू सॉल्व देम ऑन योर ओन, सो यू विल गेट एट लिस्ट ऑफ दोस क्वेश्चन एट लीस्ट. तो आप मान के चलें you will be very very well prepared for your board examination when you will be entering the examination hall. That's for sure. So let's start with the questions. We'll be starting first with the chapter integration here. इंटीग्रेशन के जितने हमको लगता है कि यदि कोई अगर अच्छा पेपर बनेगा तो ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. सो आई एम गोइंग टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू इन दिस वीडियो हियर. तो चलिए प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर इंटीग्रेशन हियर. सो स्टार्टिंग विद अ क्वेश्चन हियर एंड द क्वेश्चन इज इंटीग्रल ऑफ 1/1 + cot x. तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू हियर इज, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करें कि आप इसे जो cot है उसको आप कन्वर्ट कर लें. सो यू कैन राइट इट एज dx ओवर और 1/1 + cos over sin, and then obviously we know we'll be taking LCM here. तो हमें पता है कि हम यहाँ पे फिर यहाँ LCM लेंगे. तो जब आप LCM लेंगे तो sin x आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा and you have sin x + cos x with respect to x, ये आ जाएगा. अब देखिए यहाँ पे करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो तरीका यहाँ पे आई विल सजेस्ट यू ऑल वो ये है, आप यहाँ इसे हाफ से मल्टीप्लाई और या डिवाइड या 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें बच्चों. सो यू डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2, सो यू गेट इट एज 2 sin x ओवर sin x + cos x एंड ऑफ कोर्स इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x. हाफ आपका बाहर रहा और जो sin x 2 sin x है विद इन इंटीग्रल साइन, यू कैन राइट इट एज you add cos x in it and you subtract cos x in it. आप cos इसमें add और subtract कर दें, denominator remains as it is and then of course with respect to x here. तो ये तो है ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है. So now what you get here is, so half times, अब देखिए you can break it as sum of two integrals. पहला हो जाएगा sin x + cos x, so numerator denominator get exactly same in this integral. So, अब आप जान ही गए किसे कैसे करना है, प्लस हाफ टाइम्स sin x - cos x ओवर sin x + cos x with respect to x. So as I said here, यहाँ पे ये और ये तो कैंसिल हो गए. So this is like half times integral of 1 with respect to x. अब यहाँ पे आप देखें डिनोमिनेटर को यदि हम यहाँ पे t मान लेते हैं, so if I say let sin x + cos x be t and then differentiate both the side, what do we get? Cos x - sin x dx dt. Now what do we have in numerator? We have the same term but with opposite sign. तो आप यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं. So if you take minus common here, the sign get reversed, so you have cos - sin. That's the thing here. तो अब आप न्यूमरेटर को dt से रिप्लेस करेंगे, डिनोमिनेटर को t से रिप्लेस करेंगे. व्हाट विल वी गेट हियर? तो अब फाइनली आपका यहां पे आता है, सो दिस इज हाफ इंटीग्रल ऑफ आपका जो 1 है वो हो जाएगा. सो दिस इज योर x एंड देन दिस इज माइनस हाफ dt over t, 1/t integral. So this is nothing but x/2 minus half times
ln of mod t and then your t was, so what was t? So t आपका यहाँ पे sin x plus cos x था, so you replace this by here, so mod of sin x plus cos x and that's your answer. प्लस c नहीं लगाना भूलेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल में कभी भी, ठीक है? तो ये हो गया पहला क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Now here the next question is, आप देखिए ये है x plus 1 times x plus ln x whole square over x here. अब यहां पे देखिए, if I replace x plus ln x by t, देखिए यही कुछ चीजें हैं जो आपको देखना समझना होगा. तो अब यहां पे अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 ओवर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. तो ये आ जाएगा आपका x प्लस 1 ओवर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. नाउ लुक एट द इंटीग्रल हियर. So x plus 1 over x dx is dt. So now you can easily replace it with, तो ये आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं dt से और ये हो जाएगा t स्क्वायर. सो दिस इज सिंपली t स्क्वायर dt whose इंटीग्रल इज t क्यूब बाय 3 प्लस c और t आपका था क्या था? तो इट्स x प्लस ln x होल क्यूब प्लस c. See, there is always a reason why I selected this question. अब ये क्वेश्चन एक बार हो जाए तो बहुत सरल है, लेकिन यहाँ पे ये ठीक है, if you know it then it's really easy. But पहली बार ये क्वेश्चन यदि आपके सामने आएगा तो x प्लस ln x को t मान के ये दिख जाए कि ये आपका डेरिवेटिव है, तो that's important here. So that's why I selected this question. So every question which I am like going to solve here has an importance, has some reason behind why did I select those questions. ठीक है, तो चलिए let's move to the next one. So the next question is x cube sine of tan inverse of x raised to the power 4 over 1 plus x raised to the power 8. यहाँ पे इसको आप दो स्टेप में भी कर सकते हैं, सिंगल स्टेप में भी कर सकते हैं, बट सिंस नाउ वी आर डिस्कसिंग इट फॉर द फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन, एक फाइनल राउंड है ये, तो यहाँ पे डायरेक्ट ही करते हैं सिंगल स्टेप में. तो प्रैक्टिस में आप लोग इतना होंगे कि आप इसे डिफरेंशिएट करके देख सकें कि आने वाला ये क्या है. So let tan inverse of x raised to the power 4 be t here. Now differentiating both the side, what do we get? Tan inverse का डेरिवेटिव. तो tan inverse t का डेरिवेटिव है 1 over 1 plus t square और t है x raised to the power 4. So 1 over 1 plus x raised to the power 8 and then t का डेरिवेटिव chain rule. So that is 4 times x cube dx is equal to dt. Now again look at the integral here. अब आप यहाँ पे जरा इस इंटीग्रल में देखें तो ये आपका है x क्यूब ओवर 1 प्लस x रेज़ टू द पावर 8. सो x क्यूब ओवर 1 प्लस x रेज़ टू द पावर 8 as it is dx dt. So that means you need to take 4 in the denominator on the right side with dt here. So you can write this integral as 1 by 4 times and this turns out to be dt and then this is sine of t dt. अब sin t किसका डेरिवेटिव है? तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो इसका इंटीग्रल माइनस cos t हो जाएगा. सो दिस इज नथिंग बट माइनस 1 by 4 cos of t and then I'm replacing it directly here. t is tan inverse of x raised to the power 4 plus c here. ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे आंसर. सो दैट्स इट. तो फिर से यहाँ पे इंपॉर्टेंट था कि हम किसको t माने. So that was the important thing here. So now let's move to the next question. Again, look at this one. अब यहाँ पे देखिए, if I assume the denominator, if I replace denominator by t, you get the numerator directly here. So it's 10 raised to the power x here. तो इसी का डेरिवेटिव, so that's the only reason. ठीक है, तो 10 times x raised to the power 9, this one, and then plus a raised to the power x का डेरिवेटिव a raised to the power x times ln a, तो ln 10 dx is equal to dt and that's it. We are done. तो ये आपका इंटीग्रल हो जाएगा. So this is like dt over t. तो ये हो गया आपका ln of t and t is x raised to the power 10 plus 10 raised to the power x plus c. That's it. Simple one, isn't that? Now that's an important one.
So 1 over cos of x minus alpha into x minus beta, or b here, or maybe I can write it to be a here. Instead of alpha, let me use a here. तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो जो डिवाइड करेंगे वो तो इंटीग्रेंट के अंदर ले लेते हैं. दिस इज लाइक 2 times cos of x minus a into x minus b. ओके या एक चीज और भी है, साइन a माइनस b से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, तो वो भी एक तरीका है जो कि कॉट और टैन के टर्म में शायद कन्वर्ट कर देगा. ठीक है, तो लेट्स डू दैट थिंग, वही कर लेते हैं. तो लेट अस डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ a माइनस b. तो रीजन क्या है, देखिए रीजन ये है कि साइन a माइनस, जो बाहर है ये तो कांस्टेंट है, तो वोंट मेक लाइक वोंट कंट्रीब्यूट एनीथिंग फर्दर इन द सोल्यूशन. आंसर में तो रहेगा बट सोल्यूशन में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं. साइन a माइनस b, इसको हम लिख सकते हैं यहां पे साइन ऑफ x माइनस b माइनस x माइनस a dx ओवर cos x माइनस a cos x माइनस b. अब अगर हम यहां पे साइन a माइनस b या साइन p माइनस q की आइडेंटिटी लगा दें, तो मान लीजिए ये आपका p है और ये आपका q है, तो क्या होता है साइन p cos q माइनस cos p sin q. Now that will help us in reducing it to the simpler form here. तो ये हो जाएगा 1 over sin of a minus b and then integral of. So as I said, sin p cos q पहला टर्म, तो sin p हो जाएगा x minus b, cos q हो जाएगा cos of x minus a. तो ये हो जाएगा sin of x minus b into cos of x minus a divided by cos x minus a into cos x minus b minus अब क्या आएगा cos p sin q, तो cos of x minus b into sin of x minus a over cos x minus a cos x minus b and dx. और इसको चलिए पूरे से मल्टीप्लाइड है, तो इसको हमने बॉक्स में रख दिया. नाउ यू कैन सी हियर कि एक एक टर्म दोनों में कैंसिल हो गया और दोनों ही आपके tan के फॉर्म में आ गए. और tan का इंटीग्रल मोस्ट प्रोबेबली आप सबको याद होगा, और नहीं याद है तो आप पता ही चल जाएगा. सो दिस इज tan ऑफ x माइनस b. tan t का इंटीग्रल है ln. और देखिए tan t को आप क्या लिख सकते हैं, tan t अगर है tan t dt मान लीजिए, तो tan t का इंटीग्रल को आप लिख सकते हैं tan t कैन बी रिप्लेस बाय sin ओवर cos एंड देन यू रिप्लेस cos बाय z. तो cos का डेरिवेटिव ऊपर बैठा है sin, तो dz हो जाएगा बट माइनस साइन के साथ, तो इंटीग्रल आ जाएगा माइनस टाइम्स dz बाई z विच इज ln z. ln z मींस ln ऑफ cos t. माइनस बाहर है, आप अंदर लेके जाएंगे ln के, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ln ऑफ sec t. तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख रहे हैं दिस टाइम्स ln ऑफ sec ऑफ and then whatever it is x minus b and then minus 1 over sin a minus b and then we know ये भी tan ही है, so ln of mod of sec of x minus a, that's it, plus that should be the answer. तो ये क्वेश्चन हो गया आपका ये वाला cos x minus a into cos x minus b in denominator का इंटीग्रल. So now let's look at the next one. अब यहां पे अगला जो ये क्वेश्चन है, इसमें भी आप देखें ये है इफ आई रिप्लेस दिस बाय t, x टाइम्स e रेज टू द पावर x is t, its derivative is there in the numerator, तो e रेज टू द पावर x प्लस x टाइम्स e रेज टू द पावर x dx is dt, that's the numerator here. तो ये आप लिख सकते हैं दिस इज dt ओवर cos स्क्वायर ऑफ t. cos स्क्वायर 1 बाय cos स्क्वायर इज sec स्क्वायर, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर इंटीग्रल sec स्क्वायर t dt.
with respect to t, and then you get it as tan t, isn't that? So sec square is derivative of tan here, so tan t plus c, and then you replace tan t by rather x times e raised to the power x plus c, and that's it. ये हो गया आपका ये क्वेश्चन, सिंपल. नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन हियर. अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट, फिर से इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि सब कुछ जो इस तरह के फॉर्म के क्वेश्चन है उसमें सब कुछ यहाँ पे कवर हो जाने. कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, हाउ यू रिप्लेस इट विद लाइक स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्म एंड व्हाटएवर इट इज. इट स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्म जो है यहाँ पे, जो आपका 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्म्स है वो आपको याद होने चाहिए. न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये 3 फॉर्म आप स्किप कर सकते हैं बिकॉज दे हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम योर कोर्स फॉर दिस ईयर. बट डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट में क्वाड्रेटिक है या बिना स्क्वायर रूट के क्वाड्रेटिक है, उसके जो 6 स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपको याद होने होंगे, होने ही चाहिए. that's definitely expected from you people. अब यहाँ पे देखिए, करने का तरीका ये है कि जो न्यूमरेटर में है लीनियर टर्म, उसको आप a times, so let the linear term in numerator 5x plus 3 be replaced by a times derivative of denominator, not denominator exactly but the quadratic in the denominator. So derivative of the quadratic in the denominator, चाहे वो रूट में हो या ना हो, प्लस b. ये आप याद रखिएगा, एक जनरल मेथड है. Whether you have that quadratic in denominator within square root symbol or without square root symbol, you are going to use the same step. तो अगर न्यूमरेटर में आपके पास एक quadratic term है, so this is what I will suggest in that case. Okay, so now compare. तो अब आप इसको यहाँ पे compare करेंगे तो 5x plus 3 linear expression in on the LHS side, left hand side, linear expression in RHS also. दोनों ही साइड आपके लीनियर एक्सप्रेशन है, कंपेयर करके आप a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो यहां से आपको दिख रहा है कि 2a इज इक्वल टू 5, तो a हो गया आपका 5/2 एंड देन 4a प्लस b, तो अगर 2a 5 है तो 10 हो जाएगा, तो 10 प्लस b इज इक्वल टू 3, तो b हो गया आपका -7. b हो गया आपका -7 यहाँ पे. ठीक है, तो नाउ यू कैन राइट योर इंटीग्रल एज, चलिए आई लिख लेते हैं. अब देखिए, रिप्लेस दिस न्यूमरेटर हियर इन द इंटीग्रल बाय दिस एक्सप्रेशन. a की वैल्यू रख दीजिए, तो a चूंकि कांस्टेंट है प्रोडक्ट में बाहर आ जाएगा 5/2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो हम लिखते हैं पूरा d/dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 over the quadratic square root of the same quadratic whose derivative is present in the numerator dx. ये पहला टर्म, दो टर्म में टूटेगा ना, because 5x plus 3 is this plus this, तो दो इंटीग्रल बनेंगे. this divided by the denominator plus b divided by the denominator, and b is -7, तो -7 भी हमने बाहर ले लिया. and then this is like dx over. now that's a question in itself. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. अब दैट्स अ क्वेश्चन इन इटसेल्फ, ये अपने आप में ही एक प्रश्न है. तो वी विल सी हाउ टू डू इट. मोस्ट प्रोबेबली आप सबको पता भी होगा, बट स्टिल. अब यहाँ पे देखें, ये इसका डेरिवेटिव ऊपर है, dx हम कैंसिल तो नहीं करना चाहिए, बट ठीक है, जस्ट टू एक्सप्लेन यू, आप कैंसिल आउट नहीं करेंगे. सो दिस इज लाइक इफ यू अज्यूम दिस बाय t, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 be t, then this is dt. so dt by root t. So I can directly write it as 5/2 times integral of dt by root t. I believe आप लोग समझ गए होंगे. I am replacing this by t within square root, this quadratic by t. तो 1/root t का इंटीग्रल इट्स लाइक t raised to the power -12. तो t raised to the power n का इंटीग्रल होता है t raised to the power n plus 1 over n plus 1. तो ये हो जाएगा -12 plus 1 over -12 plus 1. तो वो हो जाएगा √2. तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2 times √t. That will do. अब इस पे आते हैं, देखिए ये है -7 टाइम्स dx ओवर. अब जब आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पे आते हैं तो दो चीजें समझें. सिंस द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज +1 हियर,
तो यहाँ पे कोई समस्या है। But had there been any other coefficient, any other means positive, negative, whatever it is, you have to take it common for this expression. मान लीजिए यहाँ 2 होता तो आप 2 कॉमन लेते पूरे एक्सप्रेशन से, तो ये हो जाता x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 विद इन ब्रैकेट। और 2 चूंकि पॉजिटिव है तो आप 1/√2 बाहर ले सकते थे, लेकिन अगर -2 होता तो याद रखिएगा -2 आप √2 से बाहर नहीं ले सकते, तब आपको वो सारा का सारा एक्सप्रेशन विद इन स्क्वायर रूट साइन ही रखना होगा। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट एट द एंड। वो एक केस हम आपको कंप्लीट नहीं बट हाउ टू मैनेज इट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट एट द एंड। तो पहले इसे कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, उसके बाद अगला स्टेप क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 हो जाए, उसके बाद आप एक्स के कोफिशिएंट का हाफ टाइम्स का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे x के कोफिशिएंट 4 है, उसका हाफ टाइम्स 2 हो गया, उसका स्क्वायर आप ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 हो जाएगा। सो दिस इज x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, 10 - 4 is 6। नाउ दैट्स अ परफेक्ट स्क्वायर, बस ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन गया। सो दैट्स व्हाट वी नीड। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, सो दैट गिव्स अस एज वी डिस्कस्ड 5/2 √t ओवर हाफ -half + 1 एंड देन दिस इज लाइक, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है, तो -7 इंटीग्रल dx ओवर √of x + 2 होल स्क्वायर प्लस 6, दैट्स इट। ठीक है, तो फाइनली यहां पे देखिए जो आया आपको, तो ये तो चूंकि हो गया है तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो 5 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ, तो आई एम कंप्लीटिंग दिस बट आई एम नॉट गोइंग टू कंप्लीट दैट अदर वन। आई एम नॉट गोइंग टू इनटू इट्स लाइक हाउ टू डिराइव इट। रिजल्ट एज आई सेड, ये किससे कंपेरेबल है ये आप पहले समझें। दिस इज कंपेरेबल विद समथिंग लाइक dt ओवर √of t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। हाउ मच इज a हियर? a is √6, तो यहां से आप देख सकते हैं, तो here t is x plus 2, कैपिटल A is √6। तो इसका रिजल्ट आपको याद होना ही चाहिए, होगा भी। आपको नहीं याद है तो आपको याद करना ही होगा। तो उसके रिजल्ट में जहां जहां t आएगा आप उसकी जगह x plus 2 रख देंगे, जहां कैपिटल A आएगा आप उसकी जगह √6 रख देंगे, एंड दैट्स इट। तो ये हो गया आपका इक्वेशन कंप्लीट। नाउ व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस हियर इज कि मान लीजिए आपका इंटीग्रल कुछ ये होता विद इन स्क्वायर रूट, तभी ये प्रॉब्लम है कि मान लीजिए -2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 3x - 5 लेट्स से। सो एज आई सेड, आप यहाँ पे -2 स्क्वायर रूट के बाहर नहीं ले सकते, आप -2 x क्वाड्रेटिक में जब भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना है तो जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसका कोफिशिएंट +1 बनाना होगा। So you need to take -2 common from this expression. So you are left with x square plus minus rather 3/2. So x square minus 3/2 x plus 5/2. ये आ गया आपका within this. But here you can't take it out. आप -2 को स्क्वायर रूट के बाहर नहीं ले जा सकते. You need to keep it within the square root symbol. आप नहीं ले सकते। अब जो भी आपको मेथड लगाना है इसमें लगाना है, तो यहाँ पे x की कोफिशिएंट कितना -3/2, उसका हाफ टाइम्स -3/4, इसका स्क्वायर 9/16, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट विद इन द ब्रैकेट हियर। सो x स्क्वायर -3/2x प्लस 9/16 आपने ऐड किया तो ऑब्वियसली यू नीड टू सब्ट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा +5/2 -9/16, ये आ गया। नाउ व्हाट नेक्स्ट? स्क्वायर रूट ऑफ -2। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया आपका। सो इट्स लाइक कि किसका परफेक्ट स्क्वायर है? x - 3/4 होल स्क्वायर, ये आ गया। हाउ मच इज इट? तो ये हो जाएगा आपका 16, आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 40 - 9 is 31, सो प्लस 31/16, दैट्स इट। अब आप -2 वापस से अंदर ले जाइए। देखिए प्रॉब्लम है यहाँ पे क्योंकि पूरे पे माइनस आ गया है, तो एक काम कर लेते हैं, ये प्लस कर लेते हैं, बिकॉज आई हैव टू जस्ट डिमॉन्स्ट्रेट व्हाट आई वांट टू डू हियर। तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे आपका, सो दिस विल बी इन दैट केस योर माइनस हियर,
तो ये आपका यहाँ पे माइनस आ जाएगा, and then this will be like minus 49. So let me erase it. So this will be like minus 49. अब minus 40 minus 49 by 16, तो ये भी यहाँ पे माइनस आ जाएगा minus 49 by 16. अब जब -2 आप अंदर लेके जाएंगे, so this will be 49 by 8 minus 2 times x minus 3 by 4 whole. ये है आपका. So now you can compare it with under root of a square minus x square. अच्छा, एक चीज और, अभी आपको लग रहा हो कि ये यहाँ पे तो 2 है, तो 2 आपको और बाहर ले लेना होगा फाइनली, तो आप 2 एक बार और, तो रूट 2 बाहर आ जाएगा. And then this will be 49 by 16 minus x minus 3 by 4 whole square, and that's it. That's it. ठीक है. So this is how you handle the situation when the coefficient of x square is negative. ठीक है. और ये देखिए यहाँ पे गड़बड़ क्या है, अगर आप लोग समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हैं तो हुआ क्या कि पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक थ्रू आउट नेगेटिव है, स्क्वायर रूट डिफाइन ही नहीं होगा. तो इसलिए यहाँ पे जब +5 किया तब ये डिफाइन हुआ है, तो वही प्रॉब्लम आ गई थी. सो दैट्स व्हाई आई हैड टू चेंज इट विद पॉजिटिव साइन. सो दैट वाज द क्वेश्चन हियर. तो पूरा एंटायर डिस्कशन ऑन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ टेक दिस वन. देखिए ये पार्शियल फ्रैक्शन पे है और इसका पर्पस सिंपल है. आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे एक लीनियर फैक्टर है और एक आपका क्वाड्रेटिक फैक्टर है. तो फिर आप यहाँ पे कहेंगे लेट दिस बी 2/1 minus x into x square plus 1. We know for linear factor we introduce a constant, for quadratic factor we introduce a linear term. So bx plus c over x square plus 1. अब तो फिर एलसीएम ले लेंगे और डिनोमिनेटर दोनों साइड पे कैंसिल हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 2 is equal to a times x square plus 1 plus bx plus c times 1 minus x. ये आ गया. Now we know for every linear term we will equate it with 0, get the value of x, and we will substitute here and get the value of one unknown at least. तो x minus 1 एक लीनियर टर्म है, इक्वल टू 0 करेंगे तो x is equal to 1. So put x is equal to 1. What do we get? So 2 is equal to, यहाँ पे आ जाएगा 2a और वो शून्य हो गया, a आ गया 1, 1 आ गया. So that's what I said. अब अगर दूसरा लीनियर टर्म भी होता, फैक्टर होता, तो फिर दूसरा कांस्टेंट भी आ जाता, तीसरा होता तो तीसरा भी आ जाता. बट सिंस दिस इज अ क्वाड्रेटिक फैक्टर हियर व्हिच वी फर्दर कांट फैक्टराइज ऑब्वियसली. तो यहाँ पे फिर तरीका ये है कि आप x को शून्य रख लीजिए अगर वो फैक्टर के रूप में पहले नहीं यूज हुआ है. x इज इक्वल टू 0 हमने ऊपर नहीं यूज किया, तो अभी तो सिर्फ एक ही यूज किया, 1 है. सो पुट x इज इक्वल टू 0 इन दिस स्टेटमेंट. ये वो स्टेटमेंट है जहां पे हम वैल्यूज रख रहे हैं ऑब्वियसली. तो पहले एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर सेम आया, कैंसिल आउट किया, फिर जो स्टेटमेंट आया, नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ x हियर टू गेट द वैल्यू फॉर दीज अननोन्स व्हिच वी हैव इंट्रोड्यूस्ड हियर a b and c. तो b को x को जब 0 रखेंगे तो ये तो 2 ही रहा, a चूंकि आ चुका है तो 1, तो 1 into 0 plus 1 is 1, तो 1 to 1 प्लस ये शून्य हो जाएगा, b into 0 0, c times 0 1, तो c भी आ गया 1. चलिए c आ गया. अब 2 अननोन आ गए. अब तीसरे के लिए जो सिंपलेस्ट पॉसिबल वैल्यू आपको यहाँ पे समझ में आ रही है वो रख लीजिए. तो 1 हो गया, 0 हो गया, तो व्हाई नॉट टू गो फॉर -1. सो पुट x इज इक्वल टू -1. तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू -1 रखा तो ये 2 + 2 तो 2a, a ऑलरेडी 1 है तो 2 प्लस b तो -b इंटू b इंटू -1 इज -b, c ऑलरेडी 1 है and then 1 + 1 is 2. ये आ गया. So now let's solve it. तो इसे जब सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका 2 और 2 तो कैंसिल हो गया, तो फिर वो भी 2 गया, तो b भी 1 आ गया. So simple. So then we can replace this integral by, तो आपका इंटीग्रल जो है वो हो जाएगा a over 1 minus x. So this was the integrand. तो ये आपका रिप्लेस होगा a over 1 minus x. तो a भी 1, b भी 1, c भी 1. So integral of 1 over 1 minus x with respect to x.
plus b and c are both 1, so this is x plus 1 over x square plus 1, and then with respect to x again. अब 1 over 1 minus x, if you have just a linear expression in denominator with a constant in numerator, तो हमें पता है कि उसका इंटीग्रल ln of that linear expression हो जाता है. हाँ, जो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है वो बाहर प्रोडक्ट में दिखेगा, ठीक है. तो रादर डिनोमिनेटर में, मतलब उसका रेसिप्रोकल के साथ वो प्रोडक्ट में आएगा. तो यहाँ पे अगर 2 होता, 1 प्लस 2x होता, तो आपका इंटीग्रल होता क्या, हाफ टाइम्स ln ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस 2x. यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, तो माइनस 1 आप न्यूमरेटर में लिखें या डिनोमिनेटर में लिखें, वोंट मेक एनी डिफरेंस इन द फाइनल आंसर. तो माइनस टाइम्स ln ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ, अब इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x. तो नाउ लेट्स गेट इट. तो ये हो गया आपका माइनस टाइम्स, ऐसे रहने देते हैं, देन वी नो हाउ टू डी. अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया. अब इसको यदि आप t माने तो डेरिवेटिव इसका ऊपर है 2x, तो dt ओवर t हो जाएगा. तो हाफ टाइम्स 1 ओवर t का इंटीग्रल इज ln t मॉड t रादर, लेकिन x स्क्वायर प्लस 1 सिंस इट्स पॉजिटिव, तो अगर आप मॉड लगा भी देते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है, बट नहीं भी लगाया यहाँ पे तो भी चल जाएगा. एंड देन दिस इज, आपको डायरेक्ट पता है ये डेरिवेटिव है tan इनवर्स x का, तो इट्स इंटीग्रल इज tan इनवर्स x प्लस दैट शुड बी. तो ये हो गया आपका पार्शियल फ्रैक्शन पर आधारित प्रश्न. Now let's look at the next one. Now again, look at this one. अब ये क्वेश्चन में भी जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें देखिए सबसे पहले आप समझिए, यदि हम sin x को t से रिप्लेस करें, so if you replace sin x by t, then your numerator along with dx gets converted to dt here. So this implies you can write your integral as dt over 1 minus t into 2 minus t. अब आपके अगर दो या दो से ज्यादा फैक्टर हैं डिनोमिनेटर में, तो देन यू नो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अप्लाई मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन हियर. तो आप पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, तो अब ये जो कि ये दो आपके लीनियर फैक्टर्स हैं, तो 1 over 1 minus t into 2 minus t. So you know, for every linear factor we have to introduce a constant in the numerator. That's what we are going to do here. अब आप क्रॉस एलसीएम लीजिए, फिर डिनोमिनेटर दोनों साइड के कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड देन यू रिप्लेस t by 1, पहला जो लीनियर फैक्टर है इन दैट रिलेशन, एंड देन t by 2 इन द रिलेशन, एंड यू गेट a and b. ये एक हो गया. लेकिन नाउ व्हाट आई विल सजेस्ट है, एक दूसरा तरीका भी आप समझ सकते हैं. दो फैक्टर हैं, दोनों लीनियर है, और न्यूमरेटर इज इंडिपेंडेंट, लाइक न्यूमरेटर में आपका कांस्टेंट है या लीनियर ही टर्म होता, मान लीजिए ऊपर होता t या 2t व्हाटएवर, और दोनों का अगर कोफिशिएंट भी मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, मैग्नीट्यूड वाइज मींस प्लस 1 है, जैसे यहाँ -1 है तो यहाँ +1 होता तो भी चलेगा, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, और -1 है तो -1 भी चलेगा. उस केस में आप डायरेक्ट भी इसे बैलेंस कर सकते हैं. ये आप समझिए कैसे. आप मान लीजिए ये लिख लिया और यहाँ पे 2 minus 3 लिख लिया. समझिएगा, अगर सेम कोफिशिएंट है तो आप सब्ट्रैक्ट कर दें यदि आपको t ऊपर नहीं चाहिए. इफ यू डोंट नीड t इन न्यूमरेटर तो आप उसे सब्ट्रैक्ट कर दें. सब्ट्रैक्ट करते ही जब आप एलसीएम लेंगे t और t वाले टर्म कैंसिल हो जाएगा, रेस्ट यू कैन बैलेंस. तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए एलसीएम लीजिए थोड़ा और समझिए ओरली. यहाँ पे 2 minus 3 आएगा और यहाँ पे 1 minus 3 आएगा. -3 minus 3 कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज यू हैव minus sign in between, and then 2 minus 1 is 1, so that's done because we need 1 in the numerator, तो यही ही रहेगा. that is बस ये हो गया. and then its integral is, तो 1 over 1 minus t का integral is minus times ln of 1 minus t within mod, and then this is minus times 1 over 2 minus t का integral is minus, बाहर आएगा तो minus plus हो जाएगा, and then mod of ln of mod of 2 minus x. तो शैल आई राइट इट डायरेक्टली, तो आपका फिर आंसर जो आ जाएगा तो वो हो जाएगा यहाँ पे माइनस टाइम्स ln ऑफ 1 माइनस टी प्लस ln ऑफ 2 माइनस टी प्लस सी
एंड देन यू कैन रिप्लेस 3 by sin x. So ये आपका एक डायरेक्ट मेथड है जो आप याद रखें. That may save your time. Fine. So like those were few questions. Now let's move to the next question, बच्चों.